speed. I will always wear my helmet or seat belt. I will respect cyclists and pedestrians. I will not talk on the phone or text while driving. I will strictly follow lane discipline. I will never drive on the wrong side of the road. I will remain calm and responsible while driving. I will maintain my vehicle's condition. I will not drink and drive. I will obey traffic rules and I pledge to drive safely. Tene chamai sangula tene nge Ladakh police tang tene SP traffic ama thukje chejerin thank you zerin chezana jung ai tos awareness camp churches poma important du gyale tene evena diring tene chamshik transport stakeholder changma yongste gina participate chosale tantan lakale tene ma traffic ngata pata no khas kar I tourist peak season gunena ma traffic ma problem ma ngata face to in gyale tene ngata demba I ta parking space poma requirement ma big issue ji no ma ngata chamtum nyanna gyokspa goshe ji no gyale chazana tene nyampu evena ngata individual ngata chahe taxi driver ji ndo chahe individual suji ngata responsibility ano ki wrong parking tezu bor ma bora chazana tenna guni jasti I traffic ma chache se ngata problem gun face ni no gyale tene evena nge jen ki nyampo administration nyampo rang individual responsibility no I un ngata soft churches ya rang responsibility no le tantan la tene dembana administration chai Ladakh police indo chai ka administration azukshin na khone awareness camp jungjo tan don nyampo tene ina local stakeholders sam indo chai auto or Ladakh tour operator indo chai bikers indo chai taxi indo sangma gun rang level ka tani no gal nyampo ngata individual ngata local indo chai suji ngata responsibility no ki I sangma ngata aware churches more important no gal ultimately you ngata individual as a individual indo chai sangme fendo ma you important jin ngata I sangma ha go chisle yang traffic rules gun obey chosle ngatang I Ladakh so ngatang I jaga chunji na demba daksa I traffic I problem ma lo ma badai cheni no gale tene even आज जैसे कि दक्सा ngata mangpo phone while driving phone ka spera tang cheste somano tenna ding ngati I awareness ke mena te ngata as a stakeholder ngai sangme o jigne te no ki I so samangati discipline gun maintain train obey train jete yale teni srip you o jigne chespo chikpo khachan jigman pangatang I sangma follow churches ma important jino ive kananga tang individual indo sangma ive kananga tang safe luche jino gale ngatang luche jino teni janmang luche no ngatang na janma luche ngati Ladakh po mashkit pe nyampo traffic free Ladakh shik luche jino gale awareness camp रखा है तो वो रखने का मेन मकसद क्या है सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है तो ट्रैफिक पुलिस लद्दाख भी पिछले साल 1-2 साल से लगातार ट्रैफिक ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर के अंडर हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए ट्रैफिक अवेयरनेस रैलीज़ की मीटिंग्स की ट्रांसपोर्टर्स के साथ और हमने पैम्फलेट्स स्पेशल पैम्फलेट्स हमने तैयार किए और उनको हमने पब्लिक में ड्राइवर्स में और जितनी भी यूनियंस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया तो आज भी हमारा जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके डायरेक्शन पे उनकी सुपरविजन में ट्रैफिक पुलिस जो है आज हमने जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं लेह की जिसमें कि ट्रक वाले हैं टैक्सी यूनियन वाले हैं वेन यूनियन वाले हैं बाइक यूनियन वाले हैं मिनी ट्रक वाले हैं 407 गाड़ी वाले हैं तो सब लोगों के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह है जनरल सेक्रेटरीज वगैरह हैं उनको हमने सबको बुलाया ड्राइवर्स को हमने बुलाया तो क्योंकि टूरिस्ट सीज़न भी शुरू होने वाला है तो उनको हमने यही रिक्वेस्ट किया कि टूरिज़्म सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है और टूरिस्ट को किसी भी तरह का कोई उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनका जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और हमने जो पैम्फलेट उनको दिया ट्रैफिक अवेयरनेस का
उनको वो पढ़ना है। उसमें एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह और एक्सीडेंट डाटा जो है उस पर हमने दिया हुआ है। तो हमने सबसे यही रिक्वेस्ट किया और मीडिया के माध्यम से हम जनरल पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सब लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। टूरिस्ट सीज़न शुरू होने वाला है, किसी भी तरह का रॉन्ग पार्किंग वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। लेह में और करगिल में भी रॉन्ग पार्किंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्राइवर्स के पास जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। और जो हमने ट्रैफिक अवेयरनेस पैम्फलेट्स है ये हमने आज फिर दोबारा शुरू किया है। ये हम लेह में बांटेंगे, चोगलमसर में बांटेंगे, नुब्रा में बांटेंगे, खलसी में बांटेंगे, करगिल में बांट रहे हैं, द्रास में बांट रहे हैं, संकू सूरू वैली वगैरह में बांट रहे हैं। तो पूरा यूटी लद्दाख में हम ये बांटेंगे। और इसका जो सिंपल जो हमारा पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोगों को अवेयर करना ट्रैफिक रूल्स के बारे में। और जब टूरिज़्म सीज़न यहाँ पे शुरू होगा 1-1.5 महीने के बाद, टूरिस्ट को किसी भी तरह का कोई जो है कठिनाई नहीं होनी चाहिए और वो यहाँ से एक अच्छा इम्प्रेशन हॉस्पिटैलिटी का जो है वो यूटी लद्दाख से लेके जाने चाहिए। सर लेह में ज़्यादातर देखा जाए तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू रहता है सर। अभी सीज़न रहने वाला है तो पार्किंग। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। पार्किंग का जो मसला है इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बमगार्ड में जगह दी हुई है, उस पे काम चल रहा है। ऑलरेडी सभी जो भी उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने लिखा हुआ है तो वो उस पे काम कर रहे हैं। शक्चरलिंग में भी आपने देखा होगा जो लेह गेट के अपोजिट में है वहाँ पे भी काम चल रहा है। जो बस स्टैंड हमारा है वहाँ पे भी जो पार्किंग का मसला है वो उस पे हमने लिखा है तो वो भी देख रहे हैं। चोगलमसर में पार्किंग का इशू है वो भी हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, वहाँ पे भी हमने जगह मांगी है। कम से कम 3-4 कनाल हमें वहाँ पे लैंड चाहिए पार्किंग के लिए। तो वहाँ पे भी जो लैंड का इंक्रोचमेंट वगैरह है उसको गवर्नमेंट जो है वो हटा रही है और वहाँ पे वाइडनिंग हो रही है रोड की। तो मुझे लगता है जल्दी हमें वहाँ पे जगह भी मिलेगी। और जो पार्किंग का इशू है तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिस तरह से सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं इस मसले को जो है वो एड्रेस किया जाएगा। क्या उसी मैप के हिसाब से चलना पड़ेगा या उसके लिए अलग सब? जो लास्ट टाइम हमने पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई की थी वो हमने गवर्नमेंट को लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी। तो उसमें कुछ जो पार्किंग प्लेसेस है उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो जो नोटिफाई हुई है वो पूरी सारी वो यूज़ होंगी। जो नोटिफाई नहीं हुई है उस पर अभी भी जो है वो काम चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देख रही है कि फर्दर जैसे शक्चरलिंग को डेवलप किया जा रहा है, बमगार्ड को डेवलप किया जा रहा है, ट्रक का अपना वो जो है पार्किंग प्लेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो हम सारी जगह यूज़ करेंगे। जो भी पॉसिबल होगा वो हम स्टेप लेंगे और ट्रैफिक पुलिस जो है पूरा इंश्योर करेगी कि जब टूरिस्ट यहाँ पे आए, जब ड्राइवर्स कम्यूटर्स रोड पे चले, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चले। तो पब्लिक का एक इशू ये भी है सर, जितने भी अभी जो पार्किंग जो सामान खरीदने दुकान के सामने आता है तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, क्योंकि बिना पूछे वो लोग बोल रहे हैं कि हवा निकाल देते हैं या गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए लोगों का जो है जो पार्किंग, हमने ट्रैफिक पुलिस ने हमेशा लोगों के साथ कोऑपरेट किया। आपने एक्सिस बैंक में देखा होगा, बाकी जगहों पे एक्सिस बैंक का जो स्ट्रेच है वहाँ पे देखा होगा, हर जगह हमने जो है 10 मिनट 20 मिनट हम सब लोगों को एलो करते हैं। और सर्दियों में वैसे भी कम ट्रैफिक रहा तो सर्दियों में हमें ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया। लेकिन गर्मियों में जो है जो जब टूरिस्ट सीज़न शुरू होगा, ख़ास तौर पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4-5 महीने हैं सितंबर तक, तो उसमें हम लोगों का पूरा हमें कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं और जो ऑलरेडी गाड़ियाँ चलती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 7-8 टाइम्स ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे दिखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे हमें उस वक्त जो है ट्रैफिक का इशू जो है वो लेह टोन में और करगिल टोन में कि हम बहुत वो फेस करना पड़ता है। तो उस समय हमें गाड़ियों को रोड पे एलो करना, रॉन्ग पार्किंग एलो करना, वो बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल, वो मुश्किल हो जाता है। तो उस समय हमें लोगों की पूरी कोऑपरेशन चाहिए। लोगों को ज़्यादातर जो लोकल हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, और जिनके ऑफिस घर के बिल्कुल नज़दीक है अगर वो पैदल भी वहाँ तक आए, जिनके लिए पॉसिबल होगा, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पे जब आते हैं तो वो यहाँ के एरिया के लिए ही अच्छी बात है कि अगर उनको अच्छा मतलब रोड खाली मिले, वो जैमिंग का उनको वो सामना ना करना पड़े और ट्रैफिक जो है स्मूथली चले। तो जब टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे वो अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे और जो है लोगों का उसमें फ़ायदा होगा। ड्राइवर जो है मेन हमारा स्टेक होल्डर है ट्रैफिक का, तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस हमने उन्हीं को देनी होती है।
आप देख लेंगे रोड में जो भी मतलब अभी हम देख रहा हूँ मैं, मुझे पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, बंदा बोलता है मुझे 2 मिनट जो है दुकान से सामान खरीदना है, मैं 2 मिनट में आया और वो आता है 3 घंटे के बाद। तो ये प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा कि हमें कोई परेशानी नहीं है, आप 2 मिनट दुकान के सामने से सामान खरीदते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप खरीदिए, हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आप 2 घंटे उसके बदले में 2 घंटे के बाद आते हैं तो आप हमें एक ह्यूमन बिहेवियर ये होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो लेह में जामिंग का वही मसला रहता है कि ट्रैफिक जाम उसी से होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आप जामिंग का खास ख्याल रखें। रॉन्ग पार्किंग मेन इशू है लेह टाउन में, तो इसी बारे में हमने थोड़ा बहुत एविडेंस देना है, जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी है। तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी थोड़ा हमने अवेयर किया। मेन स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो हमारे ड्राइवर से, खासकर उसके साथ ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा आप लोग ध्यान में रख के उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। तो बाकी जो भी कोऑपरेशन हमसे चाहिए हम आपके साथ तैयार हैं। हर साल आप लोग कर रहे हैं, हर साल आप लोग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पब्लिक की तरफ से किस तरह की रिस्पॉन्स मिलता है? हाँ, ये बात आपने सही कहा कि पब्लिक हमें कोऑपरेट भी कर रही है। अवेयरनेस बहुत सारे लोगों में मैंने देखा, पिछले 2 महीने से मैं ये देख रहा हूँ फील्ड में कि जो अवेयरनेस कैंप्स पिछले टाइम से हमारी चल रही हैं उसका फील्ड में जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। लोग जैसे गाड़ी के लिए जगह नहीं मिली तो वो 10 कदम या तकरीबन 1 किलोमीटर तक भी गाड़ी ले जाते हैं, फिर वहाँ पार्क करके फिर बाज़ार में आते हैं। वो मैंने कुछ जगह रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं हमारी।